وزیر اعظم نریندر مودی کی آج ہے سالگرہ. نریندر مودی پہنچے گاندھی نگر. اپنی سالگرہ پر والدہ ہیرا بہن سے پی ایم ملیں گے آشیرواد. پی ایم اسٹیچو آف یونٹی اور نرمدا ڈیم پروجیکٹ کا جائزہ لیں گے. پی ایم کیوڑیا میں جلسے عام سے بھی کریں گے خطاب. آج تلنگانہ میں ریلی سے خطاب کریں گے امت شاہ. نظام آباد میں منعقد ہونے والی ریلی سے خطاب کریں گے امت شاہ. پارٹی نے محبوب نگر، کریم نگر اور نظام آباد ضلع میں ریلی نکالنے کا کیا ہے فیصلہ. بی جے پی 17 ستمبر کو منائے گی حیدرآباد مکتی دیوس. ریاست حیدرآباد کا 17 ستمبر 1948 کو بھارتیہ سنگھ میں ہوا تھا انضمام. جے این یو طلبہ یونین انتخابات کے نتائج کی ہائی کورٹ میں سماعت. جے این یو اسٹوڈنٹس یونین انتخابات کے دوران دہلی ہائی کورٹ میں داخل کی گئی تھی درخواست میں کہا گیا تھا کہ کاؤنسلر کی تعداد 55 ہونی چاہیے، لیکن الیکشن کمیٹی نے اپنا نیا فارمولا بنایا. مہاراشٹر میں انتخابی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے چیف الیکشن کمشنر سنیل اروڑا کریں گے ممبئی کا دورہ. ممبئی میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈران اور پولیس کے اعلیٰ حکام سے کریں گے ملاقات. مہاراشٹر اسمبلی انتخابات پر این سی پی چیف شرد پوار کا بیان. سیٹوں کی تقسیم پر کانگریس اور این سی پی میں ہوا اتفاق. کانگریس اور این سی پی 125 سیٹوں پر لڑیں گی چناؤ. باقی 38 سیٹیں چھوٹی اتحادی پارٹیوں کو دی جائیں گی. یو پی کے رامپور حلقہ کے ضمنی چناؤ کا معاملہ. ارشد علی خان ہوں گے کانگریس کے امیدوار. سونیا گاندھی نے ارشد علی خان کے نام پر لگائی مہر. الہ آباد ہائی کورٹ سے یوگی حکومت کو لگا جھٹکا. 17 ذاتوں کو ایس سی میں شامل کیے جانے کے فیصلے پر ہائی کورٹ نے لگائی روک. پی چدمبرم کے سابق سیکرٹری کو ای ڈی نے کیا طلب. پیرومل کو ای ڈی کا یہ تیسرا سمن ہے. کے وی کے پیرومل ہے پی چدمبرم کے سابق پرائیویٹ سیکرٹری. مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو پی ایم او سے ملاقات کا دیا گیا ہے وقت. 18 ستمبر کو وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی نریندر مودی سے ہوگی ملاقات میں راجیو کمار معاملے پر ہو سکتی ہے بات چیت. ایودھیا مالکانہ تنازع پر قاسم رسول الیاس کا بیان. 15 نومبر سے پہلے مسلم فریق کے حق میں آئے گا فیصلہ. مسلم پرسنل لاء بورڈ کی بابری مسجد کمیٹی کے کنوینر ہیں قاسم رسول الیاس. ہندی کے متعلق امت شاہ کے بیان کی کرناٹک بھر میں مخالفت. امت شاہ کے بیان سے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بھی متفق نہیں. ہندی سے متعلق فیصلے کے خلاف احتجاج. مرکز کے فیصلے کے خلاف ڈی ایم کے نے 20 ستمبر کو ریاست بھر میں کیا احتجاج کا فیصلہ. سیلن نے کہا ہندی کو ہم پر زبردستی تھوپا جا رہا ہے. سوامی چنمیانند کی بگڑی طبیعت. سوامی کے گھر پر ڈاکٹروں کی ٹیم کر رہی ہے علاج. سوامی چنمیانند پر جنسی ہراسانی کا ہے الزام. لاء کی ایک طالبہ نے لگایا ہے سوامی پر الزام. مدھیہ پردیش میں بارش کو لے کر محکمہ موسمیات نے جاری کیا 12 اضلاع کے لیے الرٹ. ہردا، ہوشنگ آباد، رائے سین، راج گڑھ، کھنڈوا میں ہو سکتی ہے بھاری بارش. راجستھان میں مضبوط ہوئی کانگریس. بی ایس پی کو لگا جھٹکا. بی ایس پی کے 6 اسمبلی ممبران کانگریس میں ہوئے شامل. بی ایس پی کا خیمہ ہوا خالی. راجستھان کے کوٹا میں سیلاب متاثرین کے لیے راحت کی خبر نہیں. حالات بہتر ہونے میں لگے گا وقت. وہیں ندیوں کی سطح آب میں ہو سکتا ہے اضافہ. چندریان 2 لینڈر وکرم کے اوپر سے گزرے گا ناسا کا آربیٹر. ناسا نے اسرو کی مدد کرنے کی کہی ہے بات. چاند پر لینڈنگ سے چند لمحے قبل خلائی مشن کا منقطع ہو گیا تھا رابطہ. سپریم کورٹ میں ایودھیا تنازع کیس کی 24ویں دن کی سماعت. مسلم فریق نے کی جنم استھان کی فریق بنائے جانے کی مخالفت. مسلمانوں کے دعوے کو کمزور کرنے کی کوشش کیا قرار. سپریم کورٹ نے ایودھیا تنازع کی سماعت کے براہ راست نشریات کے مسئلے پر کورٹ رجسٹری سے طلب کی رپورٹ. پوچھا کتنے دنوں میں براہ راست نشریات کا کیا جا سکتا ہے آغاز. یو پی سنی وقف بورڈ اور نرموہی اکھاڑا ایودھیا تنازع میں پھر چاہتے ہیں ثالثی پینل کی سربراہ جسٹس خلیف اللہ کو لکھا خط. بقیہ مسلم فریقوں نے بورڈ کی کوشش کو کیا مسترد. مرکزی حکومت نے مدارس کے لیے 120 کروڑ روپے کی پیکیج کو دی منظوری. 70 کروڑ روپے صرف یو پی کے مدارس کے لیے مختص. 42 مہینوں سے تنخواہوں سے محروم مدارس کے سائنس ٹیچروں کو بھی راحت کی امید.
कर्नाटक हुकूमत के वजीर येशुरप्पा के बिगड़े बोल, कहा जो हुब्बुल वतन मुसलमान हैं वो बीजेपी को देते हैं वोट, बीजेपी को वोट नहीं देने वाले मुसलमान पाकिस्तानी। कांग्रेस ने बीजेपी पर फिरका परस्ती का लगाया इल्जाम। बेंगलुरु में एनआरसी एनआरआईसी पर मुज़ाकरे का इनेकाद, समाजी और मिली तंजीमों से लोगों के दस्तावेजात से जुड़े मसाइल हल करने के लिए मस्जिदों में दफ्तर कायम करने पर दिया गया जोर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत भी नहीं बदल पा रही है अक़लियती इदारों की किस्मत। हुकूमत की 9 महीने मुकम्मल होने के बावजूद कई इदारों में कमेटी भी नहीं दी गई तश्कील, मुसलमानों में नाराजगी। रायचूर में कांग्रेस का जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा, येडियुरप्पा हुकूमत पर जबरदस्त रियासत में बदनज़मी और बदहाली फैलाने का लगाया गया इल्जाम। गुलबर्गा में मुस्लिम ख़वातीन के लिए इस्लामी मौज़ूआत पर सेमिनार का किया गया इनेकाद, इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने की दी गई हिदायत, कई एक मुआशरती मौज़ूआत पर भी डाली गई रोशनी। दिल्ली में आरटीओ ऑफिस में लोगों की मदद के लिए बनाए गए हैं हेल्पलाइन डेस्क। सुबह 8:30 से 1 बजे तक हर दिन तकरीबन 1200 लोगों को की जा रही है मदद। लोगों ने सुस्त रवि से काम करने का लगाया इल्जाम। गुलाम नबी आज़ाद को सुप्रीम कोर्ट ने दी कश्मीर जाने की इजाज़त, किसी सियासी प्रोग्राम में नहीं लेंगे हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गुलाम नबी आज़ाद ने किया खैर मकदम। कश्मीर मामले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की आला सतही मीटिंग, सिक्योरिटी पर हुई बातचीत। मीटिंग में कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल भी थे मौजूद। हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड जरूरी, गोवा में भी है यकसा सिविल कोड। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अश्विनी उपाध्याय ने न्यूज़ 18 से की गुफ्तगू। मंदिरों और रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे और कमांडर्स किए गए तैनात, उठाए जा रहे हैं तमाम एहतियाती कदम। रेलवे के डीजी से न्यूज़ 18 की गुफ्तगू। सैलाब से बेहाल हो गया है मध्य प्रदेश, अब तक 10,000 करोड़ का हो चुका है नुकसान। सरकार भेजेगी मरकज को रिपोर्ट, मदद के लिए बुलाई गई है फौज। वजीर आला कमलनाथ ने सैलाब मुतासरा जिलों में डीएम को हालात पर सख्ती से नजर रखने का दिया हुक्म, कहा राहत के काम में किसी तरह की ना बरती जाए लापरवाही। नकली दूध घी पनीर के बाद अब मध्य प्रदेश में नकली रेत का कारोबार, नकली रेत से इमारतें बन रही हैं कमजोर, इंतजामिया को हो रही है तशवीश। जैश ए मोहम्मद की धमकी के बाद दुर्ग, रायपुर के अलावा कई रेलवे स्टेशन पर अलर्ट, लोगों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। जैश ए मोहम्मद ने दुर्ग रेलवे स्टेशन को भी उड़ाने की दी है धमकी। मध्य प्रदेश में डिंडोरी जिले के एक गांव में मरीजों को चारपाई के जरिए पहुंचाया जाता है अस्पताल। सड़क की तामीर को लेकर गांव वाले कई बार लगा चुके हैं गुहार, कोई कार्रवाई नहीं होने पर गांव वाले हैं नाराज। मंदसौर में गांधी सागर बांध की अफवाहों को डीएम ने बताया बेबुनियाद, कहा बांध पूरी तरह से है महफूज, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त की जाएगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ाने के लिए मिड डे मील के साथ साथ नाश्ते की भी शुरुआत की। मंसूबा कामयाब होने पर अमल में लाया जाएगा हर जिले में। दंतेवाड़ा के दंगल में चुनावी तशरीद के लिए उतरे वजीर आला भूपेश बघेल। जगदलपुर एयरपोर्ट पर लीडरों के साथ वजीर आला ने की मीटिंग, चुनावी रैली से भी किया खिताब। यूपी के मदरसों को मरकजी हुकूमत का तोहफा, यूपी के लिए जारी किए 70 करोड़ रुपये, मदरसा असातिज़ा को मिलेगी राहत। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक मुस्लिम खानदान के साथ हुजूमी तशद्दुद के बाद भड़के एएमयू के तलबा, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की सख्त मांग। बिहार के अक़लियती स्कूलों को स्मार्ट क्लास स्कीम में किया गया शामिल, न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का हुआ असर, तलबा में खुशी की लहर। मकतूल तबरेज़ अंसारी की अहलिया और अहले खाना ने डीसी से की मुलाकात, मुलज़िमीन को सख्त सजा दिलाने की मांग की, इंसाफ न मिलने पर दी खुदकुशी की धमकी। गिरिराज सिंह ने इशारों में नीतीश कुमार पर साधा निशाना, एनआरसी और 370 के बहाने सियासी चश्मे बदलने की नसीहत। जेडीयू ने किया एतराज तो कांग्रेस ने ली चुटकी। आरजेडी रुकन असेंबली महेश्वर यादव को बड़े अच्छे लगते हैं नीतीश कुमार, कहा बीजेपी से मिलकर तेजस्वी यादव कर रहे हैं सरकार गिराने की साजिश। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात का बिगुल बहुत जल्द बजने वाला है, इसके पेश नज़र सियासी जमातों के दरमियान इत्तेहाद की कोशिशें हुई तेज। महाराष्ट्र असेंबली की 288 असेंबली
नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन जल्द ही कर सकता है ऐलान। इस बीच कांग्रेस एनसीपी ने नशिस्तों का बंटवारा करते हुए 125 नशिस्तों पर असेंबली इंतखाबात लड़ने पर इत्तेफाक राय कर लिया है, जबकि 38 सीटें दीगर इत्तेहादी जमातों के लिए छोड़े जाने का भी किया है ऐलान। इन 38 सीटों में 7 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में आएंगी। दूसरी जानिब शिवसेना बीजेपी में अभी तक इत्तेहाद पर मुहर नहीं लग पाई है। बीजेपी शिवसेना को 120 सीटें देने की हक में है, जबकि शिवसेना 135 सीटों का मुतालबा कर रही है। गोविंद पंसारे कत्ल मामले की तफ्तीश करने वाली एसआईटी की सुस्त रवि की बिना पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर एक मरतबा एसआईटी को फटकार लगाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अफसरान सिर्फ दूसरी तफ्तीशी एजेंसियों की तहकीकात पर मुनसर न रहें, बल्कि खुद की तहकीकात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हाई कोर्ट ने इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए तहकीक करने वाले पुलिस अफसरान को आड़े हाथों लिया। सरकारी वकील ने अदालत के सामने वजाहत पेश करते हुए कहा कि कोल्हापुर में सैलाबी सूरत हाल की वजह से अफसरान राहत रसानी के काम में जुटे रहे, जिसकी वजह से तहकीकात आगे नहीं बढ़ सकी। एनआरसी, मॉब लिंचिंग, यूएपीए और नफरत की सियासत इस मुल्क का शीराजा बिखेर देगी। इस मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि तमाम बाशिंदों को मुत्तहिद होकर मुल्क को बचाना होगा। इन ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना अमरीन महफूज रहमानी ने किया। मौलाना अमरीन महफूज रहमानी ने औरंगाबाद में कुल जमाती फेडरेशन मुस्लिम नुमाइंदे काउंसिल के ऑल महाराष्ट्र नुमाइंदे इजलास से खिताब किया। इस प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से पहुंचे अकाबरीन ने मिल्लत ने शिरकत की। अकोला के तिलहारा में वान डैम का पानी खेतों के लिए फराहम करने का मुतालबा करते हुए किसानों ने जमकर किया एहतजाज। बैलगाड़ियों के साथ किसानों ने पूरे शहर में रैली निकाली और इंतजामिया को अपना फैसला तब्दील करने की मांग की। अकोला शहर को महान डैम से पानी मुहैया किया जाता है, ताहम बढ़ती आबादी और पानी की किल्लत के पेश नज़र अकोला के लिए वारी गांव में मौजूद वान डैम से भी पानी हासिल करने का फैसला किया गया। मुंबरा में तबरेज़ अंसारी के हक में एनसीपी के कारकुनों ने एहतजाज किया और खामोश धरना निकाला। मुंबरा पुलिस स्टेशन के बाहर डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने मुंह पर काली पट्टी बांधे मुजाहिरीन ने मुतालबा किया। मुतालबा किया गया कि तबरेज़ अंसारी का केस जग जाहिर है इसकी, और ये भी जाहिर है कि उसे किस बेरहमी से मारा गया है। अदलिया को चाहिए कि इसकी खुसूसी जांच करे और मुजरिमीन को कैफर किरदार तक पहुंचाए। बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ कौमी सतह पर मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत नांदेड़ में एक अवामी इजलास मुनक्किद किया गया। जलसे में बहुजन क्रांति मोर्चा के कौमी सदर वामन मेश्राम ने शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में धांधली का इल्जाम लगाया, बल्कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन के मुलविस होने की भी बात की। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके के फारूक हाई स्कूल के जदीद लवाजमात से लैस लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया। महाराष्ट्र के स्कूल एजुकेशन के वजीर आशीष शेलार के हाथों किया गया इफ्तिताह। आशीष शेलार ने कहा कि तलबा और तालिबात अपनी मादरी जुबान में तालीम हासिल करने के साथ साथ सीखें गैर मुल्की जुबानें। इस लाइब्रेरी में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 20,000 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं। तलबा और तालिबात की सहूलत के लिए इदारे में कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और मैथ्स लैब के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो भी मौजूद है। अमरावती की सरगर्म अदबी अंजुमन तहजीब के ज़ेर एहतमाम मारूफ अदीब, नक्काद और माहिर ज़ुबान डॉक्टर नासरुद्दीन अंसार के तहकीकी व तनकीदी मज़ामीन पर मुश्तमिल मजमूए अदबी मुतालात का इजरा। मारूफ नक्काद सलीम शहजाद के हाथों हुआ किताब का इजरा। अदबी मुतालात में डॉक्टर नासरुद्दीन अंसार ने बेहतरीन अंदाज में गालिब और इकबाल से लेकर मुआसिर शोरा तक के कलाम पर की है तनकीदी बहस। कर्नाटक के बीजेपी लीडर येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जो मुसलमान वतन परस्त हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं, जो पाकिस्तान के साथ हैं, मुल्क के गद्दार हैं, वो बीजेपी को वोट देने के लिए सोचते हैं। येदियुरप्पा ने मजीद कहा कि उनके असेंबली हल्के में 50,000 से ज़ायद मुसलमान हैं। आज तक उन्होंने किसी मुसलमान के पास जाकर वोट के लिए सलाम नहीं किया। येदियुरप्पा के इस मुतनाज़ बयान की कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया और दीगर ने सख्त मज़म्मत की।
आसाम में होने वाले NRC के बाद पूरे मुल्क में बहस का सिलसिला जारी। बेंगलुरु में साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने कहा कि इस पूरे मामले में आवाम को घबराने की जरूरत नहीं बल्कि बेदार रहने की जरूरत है। मुस्लिम खवातीन का कहना है कि हुकूमत ने तलाक सलासा कानून मुस्लिम खवातीन से हमदर्दी की आड़ में मुस्लिम मर्दों को जेल भेजने के लिए बनाया गया है। इन खवातीन का कहना है कि हुकूमत वक्त के कानून बनाने से शरीयत के अहकामात में कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून शरीयत अपनी जगह बरकरार रहेगा। गुलबर्गा में एक सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि 3 तलाक के वाक़े हो जाने के बावजूद इसे तस्लीम न करना गोया गुनाह कबीरा है। खवातीन के इस सेमिनार में कई अहम मुआशरती मौज़ूआत पर भी रोशनी डाली गई। फारूक अब्दुल्ला को PSA के तहत लिया गया है। हिरासत में रिहाइशगाह को करार दिया गया है झेली जेल। सुप्रीम कोर्ट में फारूक अब्दुल्ला से मुतालिक एक अर्जी पर समाअत। मरकज और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दी हुकूमत को जम्मू कश्मीर में मामलात जिंदगी बहाल करने की हिदायत। मुख्तलिफ अर्जियों पर हुई समाअत। चीफ जस्टिस ने जरूरत पड़ने पर खुद जम्मू कश्मीर का दौरा करने की कही बात। गुलाम नबी आज़ाद को सुप्रीम कोर्ट ने दी जम्मू कश्मीर का दौरा करने की इजाज़त। सियासी प्रोग्राम में ताहम नहीं ले सकेंगे हिस्सा। आज़ाद ने फैसले का किया खैर मकदम। जम्मू कश्मीर से मुतालिक JP नड्डा के बयान पर मिला जुला रद्द अमल। कांग्रेस ने कहा BJP के सब लोग इंतखाबात के तय दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। BJP ने किया बयान का खैर मकदम। चीफ जस्टिस की तरफ से जम्मू कश्मीर के दौरे की ख्वाहिश। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने किया खैर मकदम। जम्मू कश्मीर पर वज़ारत दाखिला की आला सतही मीटिंग। 2 घंटों तक चली मीटिंग। सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ उमूर पर हुई बातचीत। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। गवर्नर ने दिल्ली में वज़ीर आज़म से की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वादी कश्मीर में मामूल की सरगर्मियां अभी भी मुतासिर हैं। वादी में बदस्तूर दफ़ा 144 नाफिज है। मोबाइल और इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हैं। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे शदीद तौर पर मुतासिर हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रहने से आम लोगों को मुश्किलात का सामना है। गांदरबल जिले में मामूल की सरगर्मियां मुतासिर। तिजारती सरगर्मियां ठप। कई हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट। कुपवारा जिले में बंदिशें हटाई गई हैं। दुकानें और कारोबारी इदारे फिर भी बंद हैं। पूरे दिन हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। दफा 370 की मनसूखी के बाद जिला त्राल में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रही। मामूलात की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। कुलगाम जिले में लगातार कारोबारी इदारे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहने की वजह से आम जिंदगी काफी मुतासिर है। जिले के तमाम हसास मकामात समेत जिला सदर मकाम कुलगाम में अमन व कानून को बहाल रखने की गरज से फोर्सेज की तैनाती जारी है। लोगों ने इंतजामिया से मोबाइल सर्विस बहाल करने की मांग की। जिला अनंतनाग में दुकानें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहने से मामूलात जिंदगी काफी मुतासिर है। हसास मकामात पर अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद होने से लोग परेशान। अनंतनाग के DC खालिद जहांगीर ने बटिंगू फ्रूट मंडी का दौरा किया। DC ने मुतल्लिका हुकाम से कहा कि वो मेवा काश्तकारों की हर मुमकिन मदद करने के लिए इकदाम करें। BJP लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह का बयान। कहा कश्मीर में हालात ठीक हैं और हुकूमत सूरत हाल से मौसर तरीके से निमट रही है। पाकिस्तान यहां के हालात को बिगाड़ने की ताक में है। BJP के कौमी कारगुजार सदर JP नड्डा के जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के बारे में दिए गए बयान पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। BJP ने यहां की असम्बली के तमाम इख्तियारात खत्म किए और लोगों में इंतखाबात के तय खासी दिलचस्पी नहीं रही है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में दफा 370 की मनसूखी की वजह से गुज़श्ता 1.5 माह से यहाँ सन्नाटा है। यहाँ महकमा सयाहत काफी मुतासिर है। अनंतनाग के खरम गांव में पीने के पानी की किल्लत। इलाके के लोग पानी को तरस रहे हैं। हुकाम पर गफलत जारी का इल्जाम। बांडीपुरा के पाना इलाके में पीने के पानी की अदम दस्तियाबी। इलाके में कई किलोमीटर तक पाइपों का जाल बिछाया गया है। ताहम मकामी आबादी में पानी की फराहमी में महकमा PHE मुकम्मल तौर पर नाकाम है। नाला सुखनाग में पानी की सतह कम। सिंहपुरा पटन में पीने के पानी की सख्त किल्लत। आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर लोग मजबूर। हुकाम ने जरूरी इकदाम करने का दिलाया यकीन।
पुंछ में LOC के फ्लोर गांव के लोग सरहद के इस पार से होने वाली गोलाबारी से फिक्रमंद। पाकिस्तानी फौजी हिंदुस्तानी फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी बनाते हैं निशाना। DC कुपवाड़ा अंशुलगढ़ की मीटिंग, जिले के तरक्याती प्रोग्रामों का जायजा लिया। पंचायत घरों के कयाम से मुतालिक हुई गुफ्तगू। करगिल के वाखा में बुद्धों की मजहबी इमारत गुम्पा का इफ्तिताह किया गया। खुसूसी पूजा की गई और आपसी भाईचारे, अमन और खुशहाली के लिए दुआ की गई। कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। लेह में खून का अतिये कैंप का इनेकाद किया गया। चंडीगढ़ के रहने वाले बलदेव कुमार की जानिब से यह कैंप लगाया गया। इस कैंप में कई लोगों ने खून का अतिया दिया। निर्वाणा कमेटी रामबन की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। सबा नौरीन ने प्रोग्राम से किया खिताब। दिलचस्पी और सलाहियत के मुताबिक तालीमी कोर्सेज के इंतखाबात का दिया मशवरा। करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का बयान। पाकिस्तान 9 नवंबर को करतारपुर राहदारी का करेगा इफ्तिताह। गुरु नानक देव का यौम पैदाइश 11 नवंबर को मनाया जाएगा। ज़ायरीन को एयरपोर्ट जैसी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इमिग्रेशन के लिए 152 काउंटर कायम किए जाएंगे। शुरू में हर रोज 5000 ज़ायरीन ननकाना साहब जा सकेंगे। सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमला करने वालों को भरपूर जवाब देने के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ईरान ने सऊदी ऑयल तंसीबात पर हमले में मुलविस होने की अमेरिकी दावे को किया मुस्तरद। कहा वाशिंगटन आयद कर रहा है बेबुनियाद इल्जाम। इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू का एक और चुनावी वादा किया गया पूरा। वादी उर्दुन में नई यहूदी बस्ती करेंगे आबाद। 17 सितंबर को होने वाले इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए दांव खेल रहे हैं नेतन्याहू।